on demand management and water use efficiency, the way ahead, I have the privilege of inviting Ms. Archana Verma, Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission, Bureau of Water Use Efficiency, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. Over to you, ma'am, for your presentation. Thank you, Sapna. Honorable Chair, dignitaries on the dais, dignitaries as participants, and members of the media, and everybody present here. You know, we are wasting water like I waste my time on social media and on WhatsApp. Many of you would have seen me constantly on WhatsApp. So today, what I'm going to do is try to present that water use efficiency is something which is like veganism. It is cool, trendy, and good for the planet. So before that, I want to start on the statistics. I think this has been done to death, and everybody knows that, you know, we are squeezed because we have only 2.4% of the geographical area, 18% of the global population, and 18% of the global livestock, and 4% of the freshwater resources. Now, you would be surprised to know that from 1951, when our per capita water availability per capita meter cube was 5177. It has come down to around 1820 now, and if we go the way we are going, then it will come down to the Falcon Mark water scarcity level, which is around 1000 meter cube. These challenges have also been, discussed, Madam Secretary in her presentation and context setting has described everything, that the reasons of biggest water challenges are our growing stress and scarcity, uneven distribution, Jaipur getting less than 300 mm, Goa getting more than 3000 mm. Then, ma'am has already said that monsoon 50% is within only 50% of the water is within 15 days of the 100-day rainfall. And then we are the biggest exploiters of groundwater, 25%. Both China and US put together, we exploit groundwater. There's increasing incidence of population. The picture is there to show. And as ma'am has said, that climate change impact is already there showing with high incidence of flooding and intensity of the precipitation. This also needs no explaining that, I've already said the 12 river basin of ours are already water stressed. And mind you, Ganga basin is also one of the water stressed as per the Falcon Mark index. The only two basins which still have water, and that's why perhaps Assam has gone unrepresented, is the Brahmaputra and the Barak basin. Yahi do basins hain jo abhi water stress level पे नहीं आए हैं, नहीं तो सारे 12 river basins हमारे water stress level पे हैं, जो ये picture दर्शाती है, और हमारा already spatial temporal explain कर चुके हैं. हमारे माननीय मंत्री जी ने already कह चुके हैं कि हम अगर अपने पानी का रखरखाव नहीं किए तो 1180 BCM जो 2050 में हमारा रिक्वायरमेंट है वो हम मीट नहीं कर पाएंगे. अगर हम सारा यूटिलाइजेबल वाटर को यूज भी कर लिए तभी भी क्या इंपॉर्टेंट होता है वो है, दैट इज द डिमांड साइड मैनेजमेंट. वाटर यूज एफिशिएंसी अगर हम तीनों सेक्टर के इंडियन सिनेरियो में देखते हैं, then we have one of the lowest,
I'm not very proud to say it, but India has the lowest water use efficiency compared to the developed nations. हमारा जो agriculture sector का water use efficiency is 35 to 40%. Canal irrigation में जो अनुज ने already अपने इसमें बोला है, and 60% for groundwater irrigation scheme. और rice, wheat और sugar cane हमारा 43% of the gross cultivable area को consume करता है, 80% of irrigation water को consume करता है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है. Overall हमारा rice को 3000 से 4000 liters लगता है, whereas US and Australia में it is 1000. So हम लोग ज़्यादा पानी consume करते हैं. और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम लोग 2 to 3.5 times जो per unit cost of production है, वो compared to other countries, like say for textile हम लोग 1500 लीटर to 3000 लीटर यूज़ करते हैं एक फैब्रिक बनाने में, whereas western countries में it is 1500 to 1000. So हम देख रहे हैं स्टील में भी हमारा 1 metric ton of steel में 3.5 हम लोग यूज़ करते हैं, जबकि वेस्ट कंट्रीज में it is below 2. So we can see कि इंडस्ट्री में भी हम लोग वाटर बहुत कंज्यूम कर रहे हैं. डोमेस्टिक सेक्टर में भी 30 to 40% हमारा टोटल फ्लो जो लॉस्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में. मैं बस थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो करंट इरिगेशन एफिशिएंसी है, इसमें अदर लॉसेस 5% हैं. जो मैक्सिमम आप देख सकते हैं इस फील्ड एप्लीकेशन लॉसेस जो 25% है, एंड इन आवर इरिगेशन एक्चुअल इरिगेशन एफिशिएंसी में. सिमिलरली वाटर डिमांड इन इंडिया, जो कि बहुत वक्ताओं ने कह चुके हैं, बढ़े ही जा रहे हैं और वो बढ़ते ही रहेंगे अगर हम डिमांड मैनेज ना करें. नेक्स्ट है कि सेक्टोरल इश्यूज क्या है. हमारा इरिगेशन पोटेंशियल कैपेसिटी जो है वो जितना है उतना हम यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं. ये इरिगेशन में वाले सेशन में पूरा डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं एग्रीकल्चर के बदले डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस करूँगी. यूज़ ऑफ सही फसल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो ग्रेजुअल श्रीयान और इस तरह के लेस वाटर गजलिंग प्लांट्स पे, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स पे जो लाइवलीहुड भी दे और पानी भी कम गज़ल करे. क्योंकि पंजाब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसका वाटर टेबल इतना ऊपर था बट इतना नीचे चला गया है. हरियाणा एक एग्जाम्पल है जिसमें सेम प्रॉब्लम हुआ है. सो ग्राउंड वाटर पे जो वो डिपेंडेंसी था, वो पंजाब इज एंड हरियाणा आर लिविंग एग्जाम्पल्स की unsustainable, though we must credit them for food sufficiency and food security for India, but आज बहुत ही problems हैं because of this unsustainable extraction of groundwater. Similarly, inefficient irrigation practices जो कि हम फिर बताएंगे. Industries में main problem है हमारे जो especially जो distilleries हैं, beverages हैं जो हम table पे देखते हैं, वो जो है 3000-4000 लीटर यूज़ करते हैं कोक एंड ऑल इन कोक, पेप्सी और व्हाटएवर बेवरेजेस. लेकिन वही कंपनीज बाहर में 1000 के अंदर वाटर यूज़ करके बनाते हैं. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव. वी डोंट रिसाइकल मच इन इंडस्ट्री. पुअर मैनेजमेंट ऑफ यूज वाटर जो होता है, नॉन कंप्लायंस होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, and inefficient use of water in industries, ये हमारा main sectoral challenge है. And urban water supply में शिल्पा already बताएंगी. poor operation and maintenance, कि बना तो देते हैं structure उसको ताजमहल जैसा, लेकिन maintenance के लिए हमारे पास human resource नहीं है, training नहीं है, capacity नहीं है. यूज़र चार्जेस तो हम बोलने में ही घबराते हैं क्योंकि पता नहीं जनता कैसा फील करेगी. ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसीलिए भी इसको इसी जगह हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस बने, बिकॉज बिना पॉलिटिकल कंसेंसस के हम वाटर सेव नहीं कर सकते. यूज़र चार्जेस में हंगामा हो जाता है
और जबकि हम एनर्जी में देते हैं लेकिन वाटर में हर कोई क्यों सोचता है फ्री है। सेकंड इज नॉन रेवेन्यू वाटर जो है वो बहुत हाई है हमारा डोमेस्टिक सेक्टर में। प्रॉपर एफिशिएंट अप्लायंसेस नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स फॉर लीक डिटेक्शन एंड रिपेयर और ट्रेनिंग भी नहीं है। ये सब कुछ चित्र हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं बिकॉज मेरे पास बस 5 मिनट है। ये आप खुद ही देख सकते हैं सेक्टर वाइज क्या क्या इश्यूज है, जो कि बहुत खूबसूरती से पद्मा दौर जी ने मेरे लिए बनाया है कि हर सेक्टर के पिक्चर के थ्रू ये आप देख सकते हैं कि कैसे स्पेशली इंडस्ट्रीज का आप देखिए, कूलिंग टावर्स, वेट प्रोसेसेस यूज़ करते हैं हम लोग, जबकि हम लोग ड्राई प्रोसेसेस यूज़ करें जिसमें वाटर कूलिंग हो पाए। ये सब लीकेज फिक्सचर्स। सो पाथवेज क्या है? पाथवेज बहुत एविडेंट है जो ऑलरेडी है कि डिमांड साइड मैनेज करो। हम पानी को बढ़ा नहीं सकते, वी हैव टू मैनेज द डिमांड साइड। हाई कॉस्ट ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। वाटर यूज एफिशिएंसी में डिमांड साइड मैनेजमेंट इज द कोर प्रिंसिपल। एंड इंडस्ट्री के लिए अगर कहा जाए, कोई बेल बजा रहा है बार बार, प्लीज स्टॉप। इंडस्ट्री के लिए कहा जाए तो सर्कुलर इकोनॉमी, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, इम्प्रूव्ड कूलिंग सिस्टम, पॉपुलराइजिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक IoT बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो फिगर देखते हैं तो 87% हमारे जो वाटर गजलिंग इंडस्ट्री है वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग है और उसके बाद हमारे टेक्सटाइल आते हैं। तो हम उनके साथ हम कांटेक्ट में हैं कि आप लोग एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड सेट किया है यू नो द बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर या ये उसमें आए, और आ भी रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्रीज आर टेकिंग दिस अप, जो कि इज अ गुड थिंग। डोमेस्टिक में वाटर कंजर्वेशन जो है, एफिशिएंट फिक्सचर्स का प्रॉब्लम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सर बार बार बोल रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से बहुत सारे समाधान हो सकते हैं। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, रिसोर्स रिकवरी, सर्कुलर इकोनॉमी, बिहेवियर चेंज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हम पानी के लिए पैसा क्यों दें, वो तो फ्री है। वाटर मीटरिंग, वाटर ऑडिट, लीक डिटेक्शन, रिपेयर और ग्रीन स्पेसेस। शहरों में पहले कितने ग्रीन स्पेसेस होते थे, हम पेवमेंट बना रहे हैं, अर्बनाइज कर रहे हैं। इसीलिए ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी सेटअप किया गया है, जो अभी इन सब चीज़ों को देख रहा है और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ किया है जिसको मैं Bureau of Water Use Efficiency, which has been set up to address this issue, seeks to promote water use efficiency in agriculture, industry, and domestic sectors by facilitating water audits, water footprint, community engagement, research, and showcasing of best practices at both the national and international levels. Water use efficiency in homes, agriculture, and industries, we can save billions of liters and create a sustainable future. Thanks to the active stakeholders' engagement, BWUE has completed 17 baseline studies of irrigation projects in different states. To enhance water use efficiency in some water-intensive industries like thermal power plants, textile, pulp and paper and steel industry, the Energy and Resources Institute, TERI, through benchmark studies has identified opportunities, technologies, best practices and policy intervention for enhancing water use efficiency. Sahi Fasal campaign for agri sector was launched in collaboration with Small Farmers Agri Consortium, Ministry of Agriculture and Atal Bhujal, Ministry of Jal Shakti. BWUE has also collaborated with BIS and DPIIT for standards refinement of plumbing and sanitary fixtures like faucets, cistern, taps in built environment. So ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, बट क्या ये सफिशेंट है? जो हमारा जो मेन मुद्दा हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उसके लिए है कि क्यों इस BWUE को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिले, क्योंकि
हम जो देखते हैं कि देयर सेंट्रल अथॉरिटीज, स्टेट अथॉरिटीज में कोई सामंजस्य नहीं है. Thousands of authorities हैं, thousands of agencies हैं जो water use efficiency को deal कर रहे हैं. Just like Bureau of Energy Efficiency जो Energy Conservation Act में institute हुआ, जो कि standards, labeling, demand and management program ऐसा करता है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हम एक ब्यूरो को, नेशनल ब्यूरो को एक लेजिस्लेटिव स्टेटस दें जो प्रमोट करे एंड रेगुलेट करे वाटर यूज एफिशिएंसी. बट वो वाटर रेगुलेशन नहीं, वो सेल्फ रेगुलेशन हो, मोर इंसेंटिव बेस्ड हो और मार्केट प्रिंसिपल्स जहाँ जहाँ फीजिबल हो, जहाँ नहीं हो वहाँ नहीं. लेकिन एटलीस्ट इनको 22 साल लगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को आज इस लेवल पे आने पे. तो अगर हम इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, उसको बनाएंगे ही नहीं और वेट करते रहेंगे तो हमारा पानी खत्म हो जाएगा. तो ये हम एनकरेज करना चाह रहे हैं सारे सेक्टर्स में. ये देखिए इतने सारे एजेंसीज हैं जो वाटर यूज एफिशिएंसी पे काम करते हैं. सो ये सब हम फ्यूचर वर्क चाह रहे हैं बिकॉज अभी वो जस्ट एक विंग है अंडर NWM जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो प्योर मतलब क्या कहें, टीम वर्क पे चल रहा है वो. सो हम वाटर ऑडिटिंग करना हम नहीं चाहते, ये ब्यूरो नहीं कुछ करेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसी एजेंसी हो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरह इनवाइट करे थर्ड पार्टीज को, जो मिनिस्ट्रीज को, स्टेक होल्डर्स को, जो ये बनाए और वो सेल्फ रेगुलेटरी एडवाइजरीज बने, स्टैंडर्ड्स बने, इंसेंटिव्स दे मिनिस्ट्रीज, मॉनिटर एंड इवेलुएट खुद करें. हम किसी का काम नहीं लेना चाहते, बट हम इस पे फोकस लाना चाहते हैं. उससे कंजर्व करेंगे वाटर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी अगर एफिशिएंट होगा तो हम एनर्जी भी कंजर्व करेंगे. अभी पंप्स आप जानते हैं कितना ज़्यादा पानी लेते हैं, कॉस्ट सेविंग होगा, एनवायरमेंटल बेनिफिट तो होगा ही. इसीलिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं एज आवर मंत्रा इन BWUE जो आदरणीय प्रधानमंत्री का है, एम्ब्रेस द 4 Rs, रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज एंड रिसाइकल. उसमें हम लोग एक और वर्ड ऐड किए हैं, रिस्पेक्ट वाटर. थैंक यू. Thank you very much indeed, ma'am, for that detailed and informative presentation.